Good morning, children. Welcome back to EVS class. I hope you have seen this picture in your textbook, chapter number 11. Sorry, 10th, chapter number 10th, Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. Okay, the name of chapter is Kabaddi, 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 out, out. All the girls shouted loudly, Kabaddi, 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 hold from here, Kabaddi, Kabaddi, hold from the leg, the leg, hold her leg, Kabaddi, Kabaddi, Vasudha, you come here, you hold her from here. Hey Sushila, make sure that her hand does not touch the line. Hold her hand. Kabdi kabdi. Oh, she was touched. She has touched it. Out, out, out. All out. Ho, ho, ho. Our team is all out. I hope you heard such type of sound many times. What is this game? That is called Kabaddi. Okay. In Hindi we pronounce it Kabaddi, and in English the spellings you have seen Kapti Kapti Kapti. Okay. So such type of voices when the children play Kabaddi, they might be okay heard such type of Kabdi Kabdi Kabdi. Now I am going to start this chapter. Okay, so children, let us start. What are these girls doing? You have seen this picture. What are these girls? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing game. So here you have seen the picture. They are playing some game. What do you call this game? Okay, in different states of India this game is called by different names. So chedugudu, hu tutu, chukit kit, who dudu, or kabaddi, or something else. Okay, in different states this game is called by different names, and this is kabaddi. When the girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist, but Shamla was not the one to give up. She dragged herself by increasing her strength and managed to touch the line in the center. जब लड़की श्यामला को सराउंड कर रही थी, उसको चारों तरफ से उन्होंने घेरा हुआ था, पकड़ा हुआ था, तो सबने सोचा कि श्यामला जो है आउट हो जाएगी, है ना। समबॉडी, कुछ ने उसके लेग पकड़े, कुछ ने उसके हाथ पकड़े और वेस्ट पकड़े, फिर भी श्यामला ने क्या किया, अपने आप को ड्रैग करके धकेल के अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखा और लाइन को टच, मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर, और उसने मैनेज किया कि लाइन को टच कर दे। व्हेन श्यामला टच द लाइन, ऑल गर्ल्स ऑफ द अपोजिट साइड वर होल्डिंग हर, है ना। जब वो टच करी थी सब लड़कियों ने उसे पकड़ा हुआ था, सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट। तो इसका मतलब जिन्होंने पकड़ा था वो सब क्या हो गई, आउट हो गई। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन, कि उसने जो है ब्रीथ, अपना सांस लिया है बीच में, सो द टीम वाज नॉट आउट। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वाज नॉट ट्रू, उसने बोला श्यामला ने कि ये सही नहीं है। शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रीथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग, अगर उसने सांस लिया होता तो लड़कियों ने उसको छोड़ दिया होता, उन्होंने पकड़ के नहीं रखा होता। देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट, फाइनली श्यामला वन, और फिर श्यामला जो है वो जीत जाती, फाइनली वो जीत गई, सॉरी। So this is what the game of kabaddi is like. Snatching and pulling happen. Someone is caught. There is shouting also. This is a game of bravery and it has many rules. What does one do when one takes turn in kabaddi? He or she keeps on saying kabaddi, kabaddi, kabaddi continuously. They have to hold their breath until दे आर कमिंग बैक इन देयर पोजिशन। मतलब होता क्या है इसमें, स्नैचिंग करते हैं और पुलिंग करते हैं, छीनना और धकेलना, और कुछ समवन इज कॉट, किसी को पकड़ा जाता है, और शाउटिंग बहुत होती है इसमें। और ये ब्रेवरी का एक गेम है, बहुत सारे रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। और जब भी जिसकी टर्न आती है तो वो उसको क्या, जो भी एक जना होता है वो उसको बोलते रहना होता है, ब्रीथ को रोककर अपने सांस को, कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूअसली, मतलब उसे बोलते रहना होता है। रोकना मतलब यू हैव नॉट टू स्टॉप सेइंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ओके, तो दे हैव होल्ड देयर ब्रीथ अंटिल दे आर कमिंग बैक इन देयर
पोजीशन. ओके. और वो उसको जो भी होता है उसको कबड्डी कबड्डी बोलते रहना है. और ठीक है, व्हेन यू आर टेकिंग योर टर्न बी केयरफुल, यू हैव टू यूज योर बॉडी एंड माइंड टू, दोनों का ध्यान रखना है, बॉडी भी और माइंड की भी अटेंशन चारों तरफ रहनी चाहिए. अगर तुम जो अपोजिट टीम है उसकी लाइन को टच कर देते हो, है ना, टेक केयर द नो बॉडी फ्रॉम देयर टीम विल कैच यू. ओके, हाउ मच यू हैव टू बी. और तुम्हें किसी को पकड़ मतलब when you touch the line of other team, take care that nobody from their team will catch you, how much you have be. सबको ये पता है कि कैसे कबड्डी खेलते हैं, सब बच्चे देखते भी हैं और खेलते भी हैं. ओके, when you go to प्ले कबड्डी, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आईज. तुम्हें पता है ये सब लेग्स, आर्म्स और आईज पे अटेंशन रखनी है. यू विल नोटिस द गुड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि इन सब तीनों बॉडी पार्ट्स या सब वेस्ट से भी तुमको कोऑर्डिनेशन रखना होता है ताकि तुम अच्छे से खेल सको. Now children, here you have to think what they asked and you have to tell what you think about. And I am giving you these stories. You have to Karan Maleshwari or सॉरी कर्णम मलेश्वरी और सरिता गायकवाड़, इनकी स्टोरीज आपको पढ़नी है. ओके, एट होम यू विल रीड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, स्टोरी ऑफ थ्री सिस्टर. लुक एट दिस फोटोग्राफ. डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर बट दे आर डिफरेंट. ओके, ये जो लेडीज दिखाए हैं ये ग्रैंड मदर, सिंपल ग्रैंड मदर नहीं है. क्यों? क्योंकि these were kabaddi players. The picture is of three sister, ज्वाला, लीला एंड हीरा. They live in मुंबई, रहते हैं अभी भी. All three of them played कबड्डी, खेलते थे बहुत कबड्डी अपने यंग एज में भी. एंड taught the game to other, दूसरों को भी उन्होंने खेलना सिखाया. ज्वाला टेल, when we were young girls were not allowed to play this game. उसने बोला जब हम यंग थे तो हमको ये गेम खेलना अलाउड नहीं था. People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. उन्होंने बोला कि अगर लड़कियां ये गेम खेलेंगी इस तरह का रफ गेम तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा. They also said that the girls had to wear the boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing. उन्होंने बोला बॉयज के कपड़े डालने पड़ेंगे इस गेम को खेलते हुए, इसलिए उन्होंने बोला कि लड़कियां इस गेम को नहीं खेलेंगी. दैट इज वाई दे स्टॉप प्लेइंग. उन्होंने इसको खेलना बंद कर दिया. व्हेन दे वर यंग their father died. Their mother and two mamas, that is maternal uncles, brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho. They encouraged the three girls to play kabaddi. उन्होंने बोला जब वो यंग थे ना तो उनके फादर की डेथ हो जाती है. मम्मा और उनके मामाज ने उनको अपब्रिंग उनकी जो है बड़ा किया होता है, अपब्रिंगिंग की होती है. बोथ द अंकल्स यूज्ड टू प्ले, वो दोनों अंकल जो उनके मामा थे वो कबड्डी खेलते और खो खो खेलते थे, इसलिए उन्होंने एनकरेज किया लड़कियों को भी कबड्डी खेलने के लिए. ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए ज्वाला एंड लीला ने. उन्होंने बोला जब 50 साल पहले कोई भी लड़कियां कबड्डी नहीं खेलते थे तब उन्होंने स्टार्ट किया कबड्डी खेलना. पेरेंट डिड नॉट लेट देम प्ले गेम. उनके पेरेंट्स जो है उस टाइम लड़कियों को कबड्डी खेलने नहीं देते थे. बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस. उन्होंने बोला हमने सोचा कि हमको ये गेम खेलना चाहिए और अंकल और मामा ने सपोर्ट किया खेलने में. We three learned the game and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. उन्होंने बोला फिर हमने एक क्लब बनाया जो अभी तक एक्टिव है ये क्लब. Remembering those days, Leela and Hira still remember those days. वो उनको वो दिन याद आते हैं. They tell how they won some matches which they were about to lose. उन्होंने बोला कि किस तरह से उन्होंने वो मैच को जीता जो ऐसे लग रहा था कि वो हार जाएंगे. Once they went to a big city to play a match. Leela tells the match had to start at 6:30
In the evening, we went to see a movie. As soon as movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama, who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave us a big scolding. उन्होंने मतलब once they went to big city, मैच खेलने गए थे, तो फिर मैच 6:30 बजे शुरू होना था शाम को। वो मूवी की टिकट लेके मूवी देखने चले गए और फिर देखा कि वहां पर बहुत डिस्टरबेंस हो रहे हैं और उनके मामा जो है उनको टॉर्च लेकर हॉल में ढूंढ रहे होते हैं। व्हेन ही फाउंड अस, जब उन्होंने उनको लड़कियों को देखा तो बहुत सारा उनको स्कॉल्डिंग्स मतलब डांट लगाई। ओके, now, this was the experience these three girls shared with you people in the story. So, I hope you understood the chapter, and this chapter is given in this book to encourage the girls to play games. Okay, I hope you understood. Now, we will do question answer in the next class.